Hello everyone, my name is Dharu and today we are discussing about the three obstacles India facing towards its growth of Bharat. As we know, India is a fast growing country in the world and in my view, these are the three major obstacles which are break down the speed of India. The first one is the unemployment, and the second is the low agriculture productivities, and third one is the quality of education and skill gap. As I as I told, first obstacle is the unemployment. As India 5.1% overall unemployment rate to the mid of 2026, and the 16.2% youth are unemployed in the between age of 15 to 29, and 6.5% unemployment among educated youth. India adds nearly a million people to its working age group every month, but formal jobs are not growing as fast. And the second one is the urban employment, about 6.6%, stay well above rural employment. And the youth employment, 16.2%, is far higher than the overall rate. Many graduates are still struggling to find their jobs. Women participation in workforce, about 40%, remains much lower than the men's, leaving a huge talent pool undergrowth. And the second obstacle is the low agriculture productivities. As we know, India is a farming country, and because of it, many and half of the population of India are doing the agriculture works. And in that case, in the agriculture, around 50 sorry 44% in population are doing the farming, but it's add only 17% to the GDP of the nation. And industry are the level up, and the services are doing the 30% and giving the 55% to the GDP. As we told, 40%, 45% of India workforce depend on farming, and 70% is agriculture share of India GDP. And 92% of farmers hold small or marginal 1 or 2 acre land. And the key causes in that case, teeny farmland land holding limit the use of machine and modern techniques. And the second one is the heavy dependence on monsoon rain. Only about half of farmland is irrigated. Weak market linkage, storage, cold chain infrastructure, cause post harvest losses. And the third obstacle is that the quality of education and skill. 56% of Indian graduates are considered unemployable, and the 40 and 4.2% of the workforce had formal vocational training, and the 53% of graduates work in job below their qualifications. As we know, many of Indians are doing the job below of it's a below of qualification. In today, if many persons are doing the graduate degree or postgraduate degree, and he also tried to get job in a group D. The learning gap start earlier. Many rural grade students will struggle to basic reading in simple divisions. About 70% of students drop out after grade 10, rising roughly 24% by grade 12. And the vocational and skill training is still less valuable than a college degree. So few students open for it early. In nowadays, as we seen that many colleges are providing only degrees. They are not providing the quality education, which is fulfill the gap fulfill the gap between get a job.
and also people are doing the doing this type of this type of courses. They are not doing the skill programs, and the gap continues to college level. Satya stay heavy on theory with too little hands-on industry-linked trainings. Employer report gap is communication, problem solving, and digital skills, not technical knowledge. Skill infrastructure. ओम सर देखना जरा नीचे। करो लोड वो कर हाँ तो इसी पावर सप्लाई का नाम हो गया। हाँ अभी ऑन हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इतनी है पूछो मत। कम वाला तो 60 वाट तक है। और हमारी जिंदाबाद। सर इस वीडियो वाली लाइट बंद कर देना। हाँ आई कहाँ था लोग कौन है श्याम है सर परसों कर ले मेरे को आज अंकित को दिक्कत ना है 100 वाट इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है इन्वर्टर कितने किलो इन्वर्टर को कम पड़ रहा है 4 4 आप सोलर का ईएमआई सरकार कितने सरकार सब्सिडी दे रही है उस पे और बाकी ईएमआई कर रहा है ईएमआई कितने आपने लगाए मेरा तो कंजम्पशन ही नहीं जो मेरा कंजम्पशन है हैवी कंजम्पशन 2 महीने के लिए ये हमारा तो है पूरा कंजम्पशन मेमोरी 3 साल रहता है फिर भी कितने का लग जाएगा सर आपका लोड देखना पड़ेगा कितना चलाना चाहते हो सोचो कि हमें एक एसी तो हमेशा चाहिए एक एसी हमेशा चाहिए मिनिमम 3 किलोवाट एक एसी चलाना
5 किलोवाट का अगर लगाते हो तो एसी 5 किलोवाट में कितने का? 5 किलोवाट में अभी गवर्नमेंट का सब्सिडी है उसमें 5 किलोवाट का होगा 304 3 से 4 टोटल कॉस्ट आएगा उसमें से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और आपका शेयर कम आएगा मैक्सिमम 25% तक गवर्नमेंट का आपका शेयर कम आएगा उसमें टोटल कॉस्ट होती है तो ये होगा कि आपका दिन का पूरा खत्म हो जाएगा दिन में तो आपके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका दिन में है सारे इक्विपमेंट दिन में चल रहे हैं तो आपका सारा सोलर पे आ जाएगा फिर भी थोड़ा सा इशू रहेगा रेनी बारिश हो रही है तो कम पावर जनरेट करेगा उस टाइम पे आप फिर रेनी सीजन में फिर ये भी होगा ना एसी हाँ एसी वगैरह फिर उसमें ये रहता है कि एसी वगैरह यूज नहीं होंगे और विंटर्स में तो सिर्फ लाइट ही चाहिए होती है हाँ ये विंटर में बहुत फर्क पड़ता है नहीं वैसे बहुत फर्क पड़ता है विंटर में ना मैं भी प्लान कर रहा था लगवाने का अभी यकीन मानो अब हमें कितने एग्जॉस्ट चलाने पड़ते हैं पूरी बिल्डिंग में बात की आपको पता ही है बिल्डिंग को किस तरह से बनवा रहे हैं हमने भी इसी तरह से लगवाई है स्पेस के चक्कर में हम उसको बंद कराते हैं अब उसको जो सफोकेशन को बाहर निकालने के लिए हमेशा चलता है ये हमेशा चलता है अभी सर हमने जो घर बनवाया है उसमें 5-5 फीट साइड में जमीन छोड़ी है 18 फीट का स्पेस है लेकिन इसमें कमी ये होगी कि हमने एडजस्ट फैन की जगह नहीं छोड़ी तो आप छेद करवा वो करवाना पड़ेगा कभी काम चलेगा घर में तो छेद करवा मेन चीज तो आपने करा है छेद तो आप कहीं करा सकते हो तो आपके पास स्पेस है जिस तरह से बननी चाहिए प्रॉपर तरीके से है ना हाँ यहाँ तो इतना इससे छोड़ेंगे तो एक ही कमरा निकलेगा ये चीज वो इसीलिए हमने इसमें जगह छोड़ी साइड में पेड़ वगैरह लगा देते हैं गवर्नमेंट के नॉर्म से तो वैसे ही बनना चाहिए घर जो कॉलोनीज में नहीं बन पाते सेक्टर्स में बन पाते हैं सेक्टर्स में जाओगे है ना तो पीछे और आगे स्पेस छूटा हुआ होता है वेंटिलेशन के अब यहाँ पे इस तरह का नहीं है और आज के टाइम में तो हम स्पेस के लिए ज्यादा भाग रहे हैं कि स्पेस में ज्यादा मिले फिर आज के टाइम में पहले की तरह वेंटिलेशन नहीं लगा रहे तो ये हमने इसको ग्रीन वो लगा रखे क्यों धूल मिट्टी से क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ऐसा लगता है हवा के चक्कर में धूल मिट्टी इतनी खा रहे हैं और अलग इशू है जैसे लोग पहले वेंटिलेशन लगाते हैं हमने नहीं लगाया क्यों से और धूल मिट्टी आ रही है आप अलग अलग शहर में चलो बहुत धूल मिट्टी स्पेशली जब रेन हो जाए वो बहुत कौन से बहुत दूर होती है मैं तो डेली जाता हूँ कैसे लगता है नहीं पहले गेट खोल दो इस रोशनी मेरे पूरे बंद कर दो मेरी रोशनी चली all live together live together that unity in diversity that is diversity याद नहीं आ रहा भूल जा रहे हो नाम मुझे बस सुनाना है आपको कितना लगेगा आपने लगा रखा सोलर पैनल सर कह रहे सोलर पैनल लगा एक स्टूडेंट काम करते हैं मेरे सोलर पैनल में कहाँ पे है सर वो मेरी भी बात करो मैं तो उसको कह रहा हूँ वो चावला कॉलोनी वो सुभाष कॉलोनी में रहते हैं वो मेरे को सर एक शादी में तो क्या हुआ सर्दियों में तो वैसे चलानी पड़े तो कम हो जाएगा ना आपको सिर्फ फैन आपका बंद हो जाएगा एसी बंद हो जाएगा सिर्फ आपकी लाइट जल रही है 5 मिनट लाइट कितना मेन होता है एसी अभी हमारा ना बिल बहुत आ रहा है और अभी लगाओ 15,000 का बिल और आपकी मान लो 10,000 ईएमआई बन जाती है 5,000 it is land of many cultures, language and festival.
India has arbitrary and many famous monuments. The Taj Mahal is one of the most famous monuments in India. बड़ा बनने के लिए भाई India बहुत is करना now पड़ता है। India is known for इससे सब फर्क पड़ greatest जाएगा people. एक्चुअली बहुत फर्क पड़ता हाय जेमिनी Great people like Mahatma Gandhi and APJ Abdul Kalam. We celebrate festivals what I like Diwali. We We celebrate festivals like Diwali, Holi, and I and want to Eid. run 3 fans and Our and soldiers, our soldiers work hard to protect 30 more. our country. We we should feel clean. We should keep clean, safe, and peaceful. We should Can keep you give me India the clean, estimate how much safe, and kilowatt I need peaceful. to run I am proud. PC 3 fans I am proud for 40 watts to be an 10 India. lights 10 lights Thank you. of 10 lights 20 watts. I am proud to be an Indian. हालांकि 3 किलोवाट में चल जाता है 3 किलोवाट में चलना है। हालांकि 2 में भी चलता है दो में हम 2 किलोवाट में 2 ऐसे भी चला देते वो अलग चीज है। मेन सप्लाई पावर बैटरी को पावर नहीं 3 नहीं चलाते 2 तो संभाल लेता है 2 किलो सर जो मेन सप्लाई है ना उसको आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, आप उसमें चला जाओगे। लेकिन सोलर का आएगा ना वो 2 किलोवाट से फालतू नहीं उठाएगा क्योंकि वो इन्वर्टर बेस्ड है, उसमें बैटरी कैपेसिटी उतनी है, इन्वर्टर की लोड कैपेसिटी उतनी है। ये बता रहा है कि 3 किलोवाट में हमारा होता है। हाँ 3 किलोवाट में ये 3 किलोवाट बहुत होता है 3 किलोवाट काफी हो सकता है 3000 वाट हो गया। आप सोचो 2 किलोवाट में आप कैसे चले 1 किलोवाट में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब चला देंगे 3 किलोवाट इनका मैंने चेक किया था सर 35 वाट का ये उनका estimate होता है। What is the estimate if I go with solar? What can you tell me the price of any brand Adani and हरियाणा में कहाँ पे शायद गांव में शायद ज्यादा हो सब्सिडी शहर में ये बता रहा है for a 3 kilowatt system in Faridabad and expectation investment 1,80,000 to 2 लाख 3 किलोवाट का 3 किलोवाट को लग जाएगा इतना, उस पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी तो इतना नहीं आएगा। वो कह रहे हैं 1,40,000 का लग जाएगा सब्सिडी वगैरह can you install with EMI अंदर ही ऊपर चले जाओ अभी क्लास शुरू होगी सर 5 मिनट्स है सर पीएम सूर्य घर चले मुफ्तली ओबीसी चौकस पे EMI and option for 3 किलोवाट कह रहे 1,80,000 आएगा 70,000 your investment is much lower in rates तो 2,160 रुपये मंथली EMI बता रहा है 5,000 तक EMI तो मैं कर दूँ कोई इशू नहीं है सर 15,000 ऐसे भी बिल पड़ जाएगा 10,000 तो ये सेव हो जाएंगे। अगर आदमी हम कुछ भी खरीदने लगते हैं हमें समझ में आता खर्चा करने तो हम घर की तरह नहीं चल रहे हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी नीड को देख कुछ भी कर सकते हैं अभी मैंने जब किया ना बहुत सोचा इसमें हमारा क्या हुआ इन्वर्टर प्रॉब्लम करने लग गया, मैंने सोचा कि सोलर लगवा लेता हूँ। सोलर का भी मैंने देखा हमारा जो नॉर्मल लोड है एक हमारा उधर चलता है गर्मियों में ज्यादातर सोलर ही चलता है हमारा एक एसी ना 24 घंटे 2 एसी लगे हुए हैं उसमें भी 2 एसी चलते हैं तो थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होता है अगर मैं छुट्टी आया हूँ तो चलेगा
जब भाई आया हुआ है गर्मी के टाइम तो चलेगा, सर्दी या बरसात में तो ऐसे ही बंद रहता है। छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं उनका 300 टीवी वगैरह कोई देखता नहीं, जैसे वाईफाई चलता है, कैमरे चल रहे हैं। मेन जो है वो एसी का है, हालांकि जब एसी चलता है तो फैन भी चलती है। इसे अगर आप चला लेते हो फैन नहीं होगा, लेकिन इसके पास मैंने फैन ऑफ करने पड़ते हैं। 3 किलोवाट में आपका हो जाएगा, आप एक एसी सोलर पैनल वाली भी लग रहा है डाली, वो लग रही है, क्या कहते हैं नाम लिखे हुए हैं स्ट्रीट पोस्ट नाम होते हैं। मुझे 1 किलोवाट का सिस्टम, 1 किलोवाट जितना एक कूलर कंटिन्यूसली चलता रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ दो कैमरे चलते रहेंगे, वाईफाई चलता रहेगा। एसी जो रिक्वायरमेंट होगी वो महंगी उस पे चलेगी, तो हमारा 2 महीने मान लीजिए 4-4 हजार रुपये बिल आ गया, 5,000 तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। बाकी कंटिन्यूसली वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा उस पे। ये आपका जाने वाला है? नहीं, वो भी है, कोटेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का भी झंझट कट जाएगा जाने का। फ्लक्चुएशन का नहीं प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन आज इलेक्ट्रिसिटी वाला है, आप कैसे देखो फ्लक्चुएशन ये वैसे आप इस पूरे मोहल्ले में या दूसरे मोहल्ले में पूरे गली में लोगों ने वोट कितने दे रखे हैं उस पर चला के दे रहे हैं। अब ये जो खाते में डिपार्टमेंट में वो इतना वोट चाहिए इसके लिए, तो इतने वोट तो लगा रखा हमने, लेकिन उससे ज्यादा होती है नहीं कहेंगे, वो नहीं करते इनको मेरे जितने के उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो उतने ही दे रहे हैं, इसमें काम चलाओ वहाँ तरीका और ये देखने आता जाता सारा पैसा कटा चार पंखे बैठने है, तो उससे क्या होगा, वोट ही कम आ रहे हैं, बिजली का नहीं बिल नहीं आएगा। अच्छा तो बिल आएगा 400